Assalamu alaikum and welcome to the data structure and algorithm course. Um, so far we have discussed or learned the data structure and algorithm, in which we have discussed array, and we have started the linked list topic. Okay, basically, uh, in this lecture I am discussing about I am discussing about doubly linked list. Okay. Before starting the lecture, I think I will repeat or review some basics about linked list. Basically, linked list is one of the most important data structures. We often faces situation like where data is dynamic in nature and number of data can be predicted, or the number of data keeps changing during the program execution. In this type of situation, linked lists are very useful. In this type of situations, linked lists are best. Linked lists are made up of many nodes, as we know, which are connected in nature. Every node is mainly divided into two parts. One part holds the data, and the other part is connected to the different node. It is similar uh, to the array, but you can say that linked list is much more easier or dynamic than array. As we know that there are three types of linked list: singly linked list, doubly linked list, and circular linked list. And circular linked list has further two types: singly or doubly circular linked list. Uh, Now in this lecture we are going to discuss about the doubly linked list. So doubly linked list, before doubly I review the singly linked list. What was singly linked list? Singly linked list is one of the most common type of linked list. It has It has different kinds of nodes which are connected to each other. Each node has data and a pointer to the next node. Unlike doubly linked list. And doubly linked list uh, provide two references, unlike the singly linked list. Singly linked list provide you a single reference, which is just this node data and this next reference. But doubly linked list have two references on each node. You can say this data is here it is a node, and one is pointing to the previous node, one reference is pointing to the previous node, and the other pointing to the next node. Okay, this is your node, and there are two references. One reference is this previous, and the second reference is this next. Okay, this would help you to point the previous node, and this will help you to point the next node. And what type of data this node contain? It could contain a single information or a more than one information. Okay, and the data it contain can be a object or any data type. Okay, doubly linked list, it has some advantages as well as it has some disadvantages. Advantages contain it can be iterated in both directions. As we know that it has two different types of references, one is for previous and one is for the next. That is why it can be iterated in both direction. Unlike the singly linked list iterate only in single or unidirection. And the second point is insertion and deletion from doubly linked list at an arbitrary node faster, because you do not have to scan from the beginning to find the previous node. Okay, in any means you want to insert data at the mid of the any linked list, so doubly linked list is faster adding or deleting any node in between the data. But in singly linked list it is not that easy to add any value in between. Okay, it has some disadvantages like cost. More memory means you have means you are using more than one references, so you are using more memory or you are using more space, and more operations to insert and delete item as compared to singly linked list.
means your operations, you are adding to more references, means your operations are more than one or two operation, like singly linked list. List manipulations are slower means if you are modifying your data, so if you modify any kind of data, you should change, because more links must be changed. If you are changing a single node, you must have to change its previous node as well as its next node. And great chance of having bug means if you are writing more lines of code, or if you are doing more operations, it's obvious that there is a great chance of having more bugs. I hope you all are getting me. Okay. Applications of doubly linked list means how in real life doubly linked list can be used, or where it can be used. Basically, the cache in your browser that allows you to hit the back and forward button, a linked list of URLs. Anywhere in your software, any kind of software you are using, it provide you to go back and forward button. This means the logic behind this, you are using a doubly linked list. And the second application is undo button. You are using undo button in your daily life, like control Z. You are doing control Z in your word program or word software. This means the logic behind that undo functionality in any software like Photoshop or Word, the logic is doubly linked list. Okay. Analysis of doubly linked list. मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ टू रेफरेंसेस मीन्स आप यहाँ पर जो है जैसे कि हमें पता है कि हम डबली लिंक लिस्ट में दो रेफरेंसेस यूज़ कर रहे हैं बजाय एक रेफरेंस के, जैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट में यूज़ करते हैं। तो अगर आप दो रेफरेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है आप मेमोरी का ज़्यादा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड लाइन क्या है, मूव बैक एंड फोर्थ मीन्स जैसे आपके फॉरवर्ड और बैक का बटन है, उसके ज़रिए आपको बहुत आसानी के साथ आप अपने नोड के अंदर, ये इनिशियल डबली लिंक लिस्ट के अंदर बैक एंड फोर्थ की बात करें, मतलब आप आइट्रेट कर सकते हैं आगे भी आसानी के साथ, पीछे भी, क्योंकि इसके पास प्रीवियस भी लिंक है और इसके पास नेक्स्ट भी लिंक है जो इसे ज़्यादा फास्टर बनाता है आपके सिंगली लिंक लिस्ट से। और थर्ड पॉइंट है असाइनमेंट ऑपरेशंस रिक्वायर टू अपडेट रेफरेंसेस इन इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन मींस जब भी अगर आप कोई चीज़ किसी भी रेफरेंस को अपडेट करते हैं वाइल इंसर्टिंग और डिलीटिंग, तो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर जब आप उनके साथ लगाते हैं तो आपको रेफरेंस को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स अगर आपने एक किसी नोड को आपने डिलीट कर दिया अपने पूरे लिंक लिस्ट के अंदर से, तो जाहिर सी बात है फिर आपको बाकी जितने भी बीच में रह जाते हैं चीज़ें, उनको क्या करना पड़ता है, दोबारा से उनके रेफरेंसेस को अपडेट करना पड़ता है कि बीच में से एक नोड आपका हट गया और बाकी जो रहते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं, तो उनके लिए आपको रेफरेंसेस को अपडेट करना पड़ता है। नेक्स्ट, इंसर्शन एंड डिलीशन आर इंडिपेंडेंट टू अ साइज ऑफ अ लिस्ट मीन्स अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं, इसका आपके लिंक लिस्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। मीन्स अगर आपका लिंक लिस्ट 1000 नोड पर मुश्तमिल है, तो अगर आप उसमें इंसर्शन करना चाह रहे हैं, डिलीशन करना चाह रहे हैं, तो आपको उतना ही टाइम लगेगा। अगर आपका लिंक लिस्ट 10 नोड पर मुश्तमिल है, अगर उसमें आप इंसर्शन और डिलीशन करना चाह रहे हैं, तब भी आपको उतना ही वक्त लगेगा। मतलब लिंक लिस्ट के साइज का आपके ऑपरेशंस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। लास्ट, बिगो इन वर्स्ट केस। बिगो का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। जस्ट आप ये वर्स्ट केस के बारे में, बेस्ट केस के बारे में जितना बेसिकली मैंने आपको समझाया उस हिसाब से सोच लें कि हर अलगोरिथम का या हर फंक्शन का एक वर्स्ट केस, एक बेस्ट केस और एक एवरेज केस होता है। तो सबसे बुरा केस वो होता है हमारे पास के पूरे ऑपरेशन में जितने नोड्स हैं उसे सबके सब जो है सर्च करने पड़े, आइट्रेट करना पड़ जाए, ठीक है, आपके प्रोग्राम को। तो वो उस प्रोग्राम का या फंक्शन का सबसे वर्स्ट केस होता है। तो जब हम सर्च कर रहे होते हैं बेसिकली डबली लिंक लिस्ट में, तो उसका वो वर्स्ट केस होता है, क्योंकि उसे वो सब कुछ क्या करना पड़ता है, स्टार्ट से लेकर एंड तक वो सर्चिंग करता है। इवन अगर वो मिड तक भी सर्च करता है तब भी वो उसका वर्स्ट केस ही कहलाएगा या एवरेज केस कहला सकता है। इंसर्शन एंड डिलीशन इन DDL इज
बिगो ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। अगर आप इंसर्ट और डिलीट कर रहे हैं तो वो आपका कांस्टेंट रहेगा। मतलब उसमें सेकंड लाइन जो लास्ट लाइन जो हमने पढ़ा था जिसमें कह रहे हैं कि इंसर्शन एंड डिलीशन आर इंडिपेंडेंट टू अ साइज ऑफ लिस्ट, तो वो उसी चीज़ को ही डिफाइन कर रहे हैं कि आपका इंसर्शन और डिलीशन जो है वो कांस्टेंट टाइम का है, आपके लिस्ट के साइज का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे वो 100 पर मुश्तमिल एक लिस्ट हो, लिंक लिस्ट हो, या 1000 पर मुश्तमिल हो, या 1 लाख पर हो। इंसर्शन और डिलीशन उतना ही टाइम लेंगे, बिकॉज द इंसर्शन एंड डिलीशन इन डबली लिंक लिस्ट इज कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास डबली लिंक लिस्ट के बाद सर्कुलर लिंक लिस्ट है, जिसमें जो है इन सब के प्रैक्टिकल हम परफॉर्म कर चुके हैं, आपके पास हैं। दोबारा से जब लैब होगा, लैब की तारीख में भी एक मरतबा हम इस पर एक प्रैक्टिकल अटैम्प्ट करेंगे ताकि आपको आसानी हो दोबारा से इन चीज़ों को समझने में। तो बेसिकली सर्कुलर लिंक लिस्ट हमारे पास होता क्या है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ लिंक लिस्ट ही होता है। इसके खुद अपने दो टाइप होते हैं, जिसमें सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट, इसके दो अलग से टाइप है सर्कुलर के। इट सपोर्ट्स traversing from the end of the list to the beginning by making the last node point back to the head of the list। ये जस्ट सर्कल बनाता है जहाँ पे आपका टेल या जहाँ पे आपका लास्ट नोड ख़त्म हो जाता है, तो वो जो लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंट होता है वो आपका कनेक्ट हो जाता है आपके बिगनिंग के प्रीवियस नोड के साथ, ठीक है। अगर आप डबली इस्तेमाल कर रहे हैं, डबली लिंक लिस्ट कर रहे हैं, तो आपका टेल का नेक्स्ट जो है वो लिंक हो जाएगा प्रीवियस हेड के प्रीवियस के साथ। और अगर आप सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके टेल का नेक्स्ट कनेक्ट हो जाएगा आपके हेड के साथ। सर्कुलर लिंक लिस्ट को आप दो तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। मतलब एक इमेज के तौर पर अगर आप उसे डिफ़ाइन करना चाहें, और ये जो दो इमेजेस आपको नज़र आ रहे हैं दोनों सिंगली लिंक लिस्ट मतलब सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट को डिफ़ाइन कर रहे हैं, डबली नहीं है। ये सिंगल आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ नेक्स्ट का नोड है, प्रीवियस का कोई नोड आपको नज़र नहीं आ रहा। सॉरी, सिर्फ नेक्स्ट का रेफरेंस है, प्रीवियस का कोई रेफरेंस आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जस्ट आपको एक फिगर के तौर पर अगर आप देखना चाहें, जैसे आम लिंक लिस्ट अगर बनता है तो ये सारा हमारे पास ये सारे एक दूसरे के साथ नेक्स्ट नेक्स्ट करके अटैच हो जाते हैं, और यहाँ पे हमारा टेल ख़त्म हो जाता है, और टेल का जो नेक्स्ट होता है वो हमेशा बेसिकली नल होता है हमारे पास। लेकिन जहाँ हम उसे कहते हैं कि सर्क्यूलर लिंक लिस्ट है, तो उसका टेल क्या होगा, यहाँ से अटैच हो जाएगा आपके हेड के साथ। टेल का नेक्स्ट अटैच हो जाता है आपके हेड के साथ। और अगर इसे आप इस तरह फिगर में देखना नहीं चाहते हैं तो आप इस तरह भी इसको फिगर बना सकते हैं। जैसे यहाँ से आपका लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रहा है, हमने कहा 2 हेड है, उसका नेक्स्ट 6 के साथ कनेक्टेड है, 6 का नेक्स्ट देन 8 के साथ है, 8 का नेक्स्ट 7 के साथ है, 7 का देन 1 के साथ है, ये हमारा टेल कहलाएगा 1। और उसके बाद 1 का जो नेक्स्ट है वो दोबारा से किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, हेड के साथ। अगर आप ऐसे बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको ऐसे कंसिडर कर लें, ऐसे बनाना चाह रहे हैं आप उसको ऐसे कंसिडर कर लें। लेकिन ये बात याद रखें कि ये दोनों जो डायग्राम है या फिगर है वो शो कर रहे हैं सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। इश्यूज विद सर्कुलर लिस्ट, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट के साथ कुछ इश्यूज हैं जिन्हें हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला इशू क्या है कि हाउ डू यू नो व्हेन यू आर डन, आपको कैसे पता चलेगा कि आप आखिर तक पहुँच गए, आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट ख़त्म हो गया। क्योंकि वो एक सर्कल में, और जहाँ तक देखा जाए सर्कल इज़ इन्फिनाइट, वो ख़त्म ही नहीं होता। तो मेक श्योर यू सेव द हेड रेफरेंस, ठीक है। हेड का हमेशा रेफरेंस आपने एक सेव करना है। जब भी अगर करंट नेक्स्ट, अगर आप ये वाला हिस्सा देखें इसमें कि यहाँ पे लिखा है करंट नेक्स्ट, मतलब जो करंट नोड है अगर वो हमारे हेड तक पहुंच जाता है, यू हैव रीच्ड द एंड। मतलब ये क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा है कि ये थोड़े से इश्यूज हैं, और नीचे जो पॉइंट्स हैं वो उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड हो चुका है। हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने हेड को एक रेफरेंस देना है। देन हेड को रेफरेंस देने के बाद हम क्या करते हैं कि जब तक करंट नोड हमारा हेड के बराबर नहीं हो जाता, दिस मीन्स हम कहाँ पहुंच चुके हैं, एट द एंड ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज एन एफिशिएंट डेटा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो कैसे आपके डेटा को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करता है सर्कुलर। ओनली लास्ट पॉइंटर कैन एक्सेस बोथ लास्ट नोड एंड हेड नोड, ठीक है। एक लास्ट पॉइंटर के जरिए, मतलब वो ऐसे एफिशिएंसी क्रिएट करता है कि एक लास्ट पॉइंटर आपके हेड तक भी आपको आसानी से आइट्रेट करवा सकता है, ठीक है, ट्रेवर्स कर सकते हैं, और आप
उसी सिंगल पॉइंटर के ज़रिए आप हेड पर भी ट्रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है ज़्यादा एफिशिएंट बन जाता है। हाउ आर इंसर्शन एंड डिलीशन हैंडल्ड? अच्छा, सर्कुलर लिंक लिस्ट में कैसे आप इंसर्शन और डिलीशन को हैंडल कर रहे होते हैं। जैसे हम डबली लिंक लिस्ट में करते हैं तो हम कहते हैं कि जब हम इंसर्ट और डिलीट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से होता है, इवन दो अगर हम उसे मिडल में इंसर्ट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमारे पास कोई ऐसा स्पेशल केस नहीं है कि अगर पहले डाल रहे हैं या लास्ट में डाल रहे हैं तो हमारे पास किसी नोड को हमें मेंटेन करना होगा। सिंपल जैसे आपके पास सिंगली लिंक लिस्ट में करते हैं तो सेम वही तरीका है। अगर मैं कहूँ सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट और सिंगली लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है, जस्ट डिफरेंस ये है कि सिंगली के पास लास्ट नोड जो टेल का नेक्स्ट होता है वो नल होता है, लेकिन सर्कुलर का जो लास्ट टेल का नेक्स्ट होता है वो हेड को पॉइंट कर रहा होता है। तो predecessor to head node is the last node in the list मीन्स अगर हम ये देख रहे होते हैं हेड से जो हमेशा पहले नोड होता है वो हमेशा क्या होता है, लास्ट नोड, क्योंकि वो एक सर्कल की तरह कनेक्ट है। हेड से पहले क्या है, लास्ट नोड है, और लास्ट के बाद हमेशा क्या होगा, आपके पास हेड का नोड होगा। ओके, एप्लीकेशंस कहाँ पे अप्लाई हो सकता है हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट। पहले अगर हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, सिंपल एग्जांपल इज कीप ट्रैक ऑफ whose turn it is in a multiplayer board game. Put all the players in a circular link list. After a player takes his turn and wants to the next player in the list, this will cause the program to cycle indefinitely among the players। ठीक है, इसके रियल लाइफ एग्जांपल में या ये कहाँ अप्लाई होता है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास है कि आपके पास एक मल्टीप्लेयर गेम है और आप अपने टर्न का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका टर्न आएगा। तो उस चीज़ को अगर हम ऑटोमेटिकली करना चाहें तो हम उसे एक सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट में डाल देते हैं कि एक जो प्लेयर है अपना गेम ख़त्म करेगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरे प्लेयर का टर्न आ जाएगा। तो इस चीज़ को हैंडल कर सकता है आपका सिंगली लिंक लिस्ट, सॉरी सर्कुलर लिंक लिस्ट। और उसके अलावा म्यूज़िक प्लेलिस्ट, जैसे अगर हम एक प्लेलिस्ट अपने मोबाइल पे भी रखते हैं कि ये सारे सॉन्ग्स आपको प्ले करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्ले करनी है, तो वो क्या कर रहा होता है, एक मरतबा सब कुछ प्ले कर देता है, तो आप देखेंगे दोबारा जब ख़त्म हो जाता है ना लास्ट वन, तो दोबारा वो स्टार्ट पे आ जाता है। तो काइंड ऑफ उसका जो नेक्स्ट होता है, टेल का नेक्स्ट या लास्ट का जो नेक्स्ट होता है, वो बेसिकली आपके हेड के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो हमेशा लास्ट सॉन्ग ख़त्म होने के बाद दोबारा वो कब किस पे आ जाता है, आपके पहले नोट पे आ जाता है। इसके अलावा एक फीफो पे बहुत अच्छा काम कर सकता है आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसके अलावा बैक और फ्रंट एफिशिएंट इंसर्ट एंड रिमूव फ्रॉम फ्रंट एंड बैक, आपके आगे और पीछे से चीज़ों को बहुत आसानी से रिमूव कर सकता है क्योंकि आपका हेड और टेल एक दूसरे से कनेक्टेड है। लास्ट वन, सर्कुलर लिंक लिस्ट शुड बी यूज्ड इन अ टाइम शेयरिंग प्रॉब्लम सॉल्व बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरह ऑपरेशंस को संभाल रहा होता है टाइम शेयरिंग के, कि किस डिवाइस को कितना टाइम देना है, किसके मतलब कोई ऑपरेशन अगर कोई डिवाइस परफॉर्म कर रहा है, बहुत सारे ऑपरेशंस अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्म करना होंगे, तो वो क्या करता है, टाइम शेयरिंग परफॉर्म करता है सारे आपके ऑपरेशंस के दरमियान या सारे डिवाइसेस के दरमियान। तो टाइम शेयर को वो किस तरीके से हैंडल कर रहा होता है, बेसिकली वो सर्कुलर लिंक लिस्ट के जरिए आपके टाइम शेयरिंग को हैंडल कर रहा होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एल्गोरिथम एनालिसिस। इससे पहले जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो तमाम मैंने रिपीट कर दिए हैं ताकि आपको जो है मिड टर्म के लिए या और आगे कोर्स पढ़ने के लिए आसानी रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम एनालिसिस। एल्गोरिथम का ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया है, बेसिकली जो वर्ड एल्गोरिथम है इज ऑन द नेम ऑफ मुस्लिम ऑथर। ठीक है, एक मुस्लिम ऑथर थे हमारे पास, उनके नाम पे एल्गोरिथम का नाम रखा गया है। रिनोड वो एक मैथमेटिशियन भी थे, अबू जाफ़र मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। वो जो है 18th सेंचुरी में अल ख्वारिज़म में पैदा हुए थे, जो अब उज़्बेकिस्तान में है। ठीक है, तो एल्गोरिथम का जो ओरिजिन निकलता है वो एक मुस्लिम ऑथर ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, जो एक मैथमेटिशियन थे। अच्छा, एल्गोरिथम की बेसिक डेफिनेशन हमारे पास क्या है, एन एल्गोरिथम इज अ वेल डिफाइंड प्रोसीजर that takes some value as input and produce some values at output।
अलगोरिथम कुछ भी नहीं, अलगोरिथम आपके पास बेसिकली एक प्रोसीजर है, एक तरीका है, एक मेथड है जो क्या कर रहा होता है, जैसे आप सम कुछ इनपुट देते हैं और आपको वो क्या करता है, एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है। एल्गोरिथम के सबसे इजी एग्जांपल आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, आप खाना बनाने को ले सकते हैं, आप चाय बनाने को ले सकते हैं। मीन्स चाय बनाने का तरीका अगर आप अपनी कॉपी या किसी पेपर पे लिखें तो हम उसे बेसिकली कह सकते हैं कि दिस इज द एल्गोरिथम फॉर मेकिंग टी। ठीक है, तो किसी भी चीज़ पर हम एल्गोरिथम लिख सकते हैं। एल्गोरिथम जस्ट आपके पास एक प्रोसीजर है, किसी भी चीज़ को बनाने का प्रोसीजर या उसको बनाने के प्रोसीजर को जाहिर करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेप्स। एल्गोरिथम बेसिकली हमें किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आता है। प्रॉब्लम आपका किसी भी नौइयत का हो सकता है, जैसे मैंने चाय बनाना एक प्रॉब्लम के तौर पर अगर आपको कह रही हूँ, तो वो एक प्रॉब्लम अगर हम लें तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या होंगे। हम पानी लेंगे, उसमें जो है चीनी डाल देंगे, फिर उसके अलावा दूध डाल देंगे और जो भी तरीका होता है चाय बनाने का वो बन जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स। अगर हम उसे अपने ओरिजिनल जो है किसी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल में देखना चाहें कि मुझे अपना नाम प्रिंट करना है 10 टाइम्स, एक मुझे छोटा सा एक प्रॉब्लम है, मुझे इनपुट देना है और वो मुझे कुछ आउटपुट दे, तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, अब मुझे एक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट बनाना है, तो उसके प्रॉब्लम को पहले समझना पड़ेगा कि उसमें मुझे क्या चीज़ें चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटी को चाहिए, जिस पर या यूनिवर्सिटी को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जिसको हम प्रोग्रामेटिकली सॉल्व कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर के तौर पर। फार्मूलेशन द प्रॉब्लम, हमने कहा सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया कि भाई हमारे पास एक अटेंडेंस सिस्टम की, मतलब हमने सब में देखा कि हमें एक अटेंडेंस सिस्टम की, ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम की ज़रूरत है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो प्रॉब्लम को हमने अंडरस्टैंड किया, फिर फॉर्मुलेट कैसे करेंगे उसको, हमने कहा कि पहले हमें क्या करना है, सारे स्टूडेंट्स का डेटा गेट करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक जो है ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम बना लेंगे अपने जो है अटेंडेंस को रखने के लिए, अटेंडेंस लेने के लिए, अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए और आसानी के लिए। डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, हमने एल्गोरिथम बनाना शुरू कर दिया कि उसमें ये मॉड्यूल होगा और ये मॉड्यूल इस तरह काम करेगा, और सारे मॉड्यूल्स के एल्गोरिथम हमने बना के रख दिए। एल्गोरिथम बनाने के बाद हमने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। इम्प्लीमेंटेशन से मुराद हमने उस पर प्रोग्रामिंग या कोडिंग करना शुरू कर दिया। जब वो कोड बिल्कुल कंप्लीट हो गया, रनिंग इट ऑन डेटा, फिर हमने उसमें अपना डेटा इंसर्ट करके देखा कि आया उसमें अटेंडेंस लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, किसी भी एक प्रॉब्लम को आप इस तरह अपने हिसाब से सोचें, कोई भी एक प्रॉब्लम अपनी तरफ से देखें। अगर आपकी यूनिवर्सिटी, आपके आसपास, या आपको कोई अपने जो है घर में कोई प्रॉब्लम है, आप सोचते हैं कि इसको जो है एक ऑटोमेटिक ये होना चाहिए, अगर हम इस पे प्रोग्रामिंग करें तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसी 5 स्टेप्स में इसको कन्वर्ट करके थोड़ा सा देख लें, आपको समझ भी आ जाएगा ये आसानी से। कि वाई एल्गोरिथम, तब हम एल्गोरिथम क्यों पढ़ें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्गोरिथम इज एसेंशियल फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट। ठीक है, कि एल्गोरिथम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए। क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को आप डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर सकते, आप उस पर बैठ के सोचते हैं, समझते हैं तो आसानी होती है। अगर आप बिना सोचे समझे, बिना एल्गोरिथम बनाए प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक जाने की कोशिश करेंगे तो आपको बार बार रिवर्स होना पड़ेगा, कि क्योंकि आपने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ है, आपने उसका एल्गोरिथम नहीं लिखा हुआ है कि कहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है वो। जब आप एल्गोरिथम बनाने बैठते हैं तो उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि यहाँ पे अगर प्रॉब्लम हमें आ सकते हैं तो कैसे सॉल्व हो सकता है, उसको हम लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बिफोर इम्प्लीमेंटिंग। अगर आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के फेज में जा रहे होंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन, एल्गोरिथम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब एल्गोरिथम का कोई खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता, वो जस्ट एक सूडो कोड होता है। सूडो कोड मीन्स फॉल्स कोड, जो आपका रन तो नहीं होगा लेकिन आपको एक बहुत क्लियर व्यू दिखा देगा कि आपका जो प्रॉब्लम है उस तरीके से सॉल्व हो सकता है। थस इट इज़ मैथमेटिकल थ्योरी बिहाइंड अ प्रोग्राम, मतलब जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आप बनाना चाह रहे हैं उसके बैक में मैथमेटिक्स क्या है या लॉजिक क्या है। Algorithm and data structures are independent, as most of the fast algorithms are fast due to the use of fast data structure and vice versa.
अच्छा, एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, आप अपोजिट कह दें। मतलब कुछ ऐसे एल्गोरिथम हैं जिनकी वजह से डेटा स्ट्रक्चर आपका फास्ट काम करता है, और कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि एल्गोरिथम जो है सही चल रहा है या फास्ट काम कर रहा है। तो मीन्स दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। Many of the courses in the computer science program deal with efficient algorithms and data structures, such as they apply to various applications, compiler, operating system, databases, AI, computer graphics एंड विजन etc। बहुत सारे कोर्सेज हम जो है पढ़ रहे होते हैं अलगोरिथम के हवाले से कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में, या डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो हमें बहुत सारे उनके एप्लीकेशंस हैं, मींस हमारे डिफरेंट चीज़ों पे अप्लाई हो रहे होते हैं ये डेटा स्ट्रक्चर और अलगोरिथम्स। जब हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे अलगोरिथम्स हमें काम आते हैं, या डेटा स्ट्रक्चर को हम देख रहे होते हैं कि कंपाइलर किस तरीके से अपने डेटा को स्टोर कर रहा होता है चेक करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से टाइम शेयर कर रहा होता है, बहुत सारे अगर टास्क उसे परफॉर्म करने होते हैं तो किस तरह अपने डेटा को मैनेज कर रहा होता है, कैसे बहुत सारे डिवाइसेस को मैनेज कर रहा होता है। डेटाबेसेस की बात करें तो उसके अंदर भी सेम है, वो डिफरेंट एल्गोरिथम के जरिए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। एआई है आपके पास, कंप्यूटर ग्राफिक्स और विजन्स और एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एल्गोरिथम को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे पास, और हम एल्गोरिथम को दो तरीके से एनालाइज कर रहे होते हैं, बाय इट्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड बाय इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम, अगर हम परफॉर्मेंस एनालाइज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिथम बनाते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम बेसिकली जब हम बनाते हैं तो हम उसको बनाने के बाद ये चेक करते हैं कि आया हमारा जो फंक्शन है जिसको हमने एक एल्गोरिथम के ज़रिए बनाया है वो कितना टाइम लेगा, कंपाइलर कितना टाइम लगाएगा उसको सॉल्व करने में, और वो कितना ज़्यादा स्पेस लेगा हमारे मेमोरी के अंदर। मीन्स आपने एक एल्गोरिथम बनाया, बहुत आप कह रहे हैं बहुत अच्छा है और वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है और उसके अलावा टाइम भी बहुत ले रहा है, तो दिस मीन्स आपका एल्गोरिथम इतना एफिशिएंट नहीं है। तो अगर हम कहें कि एल्गोरिथम के की एफिशिएंसी को किस पैमाने पे मेजर किया जाता है तो उसके सिर्फ दो ही पैमाने हैं। फर्स्ट वन इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सेकंड वन इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, इंट्रोडक्शन टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब हमारे पास दो तरीके थे किसी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को चेक करने के, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। उसमें से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ एफिशिएंट इज एन एल्गोरिथम और अ पीस ऑफ कोड। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एक पीस ऑफ कोड या फंक्शन या एल्गोरिथम एफिशिएंट है। एफिशिएंसी कवर्स लॉट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है जब अगर आप किसी भी एक पीस ऑफ कोड या एल्गोरिथम के एफिशिएंसी को चेक कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले सीपीयू टाइम यूजेज, कि आपका एक छोटा सा प्रोग्राम, छोटा सा पीस ऑफ कोड कितना टाइम ले रहा है सॉल्व होने में, या सीपीयू का कितना इस्तेमाल हो रहा है उसको रन करते वक्त या एग्जीक्यूट करते वक्त, या कंपाइल करते वक्त। ठीक है, मेमोरी यूजेज वो कितना स्पेस ले रहा है। ठीक है, डिस्क यूजेज आपके डिस्क में कितना यूज मतलब कितना स्पेस ले रहा है वो, उसके अलावा नेटवर्क का कितना आपके पास रिसोर्स खर्च हो रहे हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज जो है आपके यूज़ हो रहे होते हैं जब आप किसी भी एल्गोरिथम के एफिशिएंसी को चेक करते हैं। तो उनमें जो चीज़ें हैं आपको देखना पड़ती हैं, सीपीयू का टाइम, मेमोरी यूसेज, डिस्क यूसेज और नेटवर्क यूसेज को देखना पड़ता है। अगर वो इन सब में कम कम इस्तेमाल कर रहा है तो हम कहते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम है बेसिकली वो एफिशिएंट है। बी केयरफुल टू डिफरेंशिएट बिटवीन परफॉर्मेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब परफॉर्मेंस और कॉम्प्लेक्सिटी के दरमियान जो डिफरेंस है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। परफॉर्मेंस जब हम देख रहे होते हैं तो उसमें हमें क्या देखना होता है कि टाइम, मेमोरी या डिस्क हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारे कितने टाइम में सॉल्व हो रहा है या कितनी देर में वो रन हो रहा है। अच्छा, इसके ये डिपेंड भी करता है कि आपका मशीन कैसा है। मतलब एक बहुत अच्छे से अच्छा मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं अगर हम, तो मे बी वो कम टाइम में सॉल्व करें हमारे प्रोग्राम को। अगर हम एक कम उस पर इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब एक पुरानी मशीन पे अगर हम उसको रन कर रहे हैं जिसके रिसोर्सेज कम हैं, तो उस पर जाहिर सी बात है वो ज़्यादा टाइम लगाएगा। अगर हमारा कंपाइलर अच्छा नहीं है तो जाहिर सी बात है वो मे बी ज़्यादा टाइम लगा सके। अगर हमारा कंपाइलर अच्छा है तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो आपका कितने टाइम में
आपके प्रोग्राम को वो रन कर रहा है, उस चीज़ को हम कहते हैं परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस बेसिकली आपके डिपेंड करता है मशीन और कंपाइलर पर भी। जितने अच्छे मशीन और कंपाइलर होंगे उतनी जल्दी आपका जो है प्रोग्राम रन हो सकता है। और सेकंड है कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ डू द रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम और एल्गोरिथम स्केल। आप किस तरीके से रिसोर्स के रिक्वायरमेंट को अपने एल्गोरिथम या प्रोग्राम में स्केल कर सकते हैं, मतलब कितना उसे रिसोर्स चाहिए होगा आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए। व्हाट happens as the size of the problem being solved gets larger। मीन्स एक प्रोग्राम है जिसकी एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस मैंने चेक कर लिया, अब वो 10 मरतबा उसमें लूप आइटरेट कर रहा है, ठीक है। मैंने कहा उसको तो सिर्फ 10, मतलब इतना ही स्पेस चाहिए होगा जो 10 के बराबर होगा, इतना ही रिसोर्स चाहिए, 10 के बराबर रिसोर्स चाहिए। लेकिन व्हाट इफ अगर वो लूप 1000 या 10,000 टाइम या 1 लाख टाइम जो है पर चला जाएगा, तो आपको कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो चीज़ क्या है, आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। तो इन दोनों चीज़ों में आपने डिफरेंस रखना है कि परफॉर्मेंस जस्ट आपके रन टाइम को देख रहा होगा कि कितनी देर में आपका प्रोग्राम रन होता है। सेकंड वो देख रहा होता है आपके स्केल, रिसोर्स के स्केल को, कि कितना आपको रिसोर्स रिक्वायर्ड होगा, कितने जो है साइज ऑफ प्रॉब्लम पे, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी इफेक्ट्स परफॉर्मेंस बट नॉट द अदर वे अराउंड। आपके कॉम्प्लेक्सिटी आपके परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करती है और उसके अलावा किसी चीज़ पर इतना उसका असर नहीं होता। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसके ज़रिए हम जो है अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हमने लिखा हुआ है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टी जो है आपको जो शो कर रहा है यहाँ पे, वो टाइम को शो कर रहा है, पी फॉर प्रोग्राम, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम उसे इस तरह शो करेंगे, इक्वल टू सी। सी एक कांस्टेंट को जो है शो कर रहा होता है, मतलब जैसे अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, तो जब हम प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं तो वो हमेशा वो टाइम जिसमें हम डेटा को, सॉरी वेरिएबल को जब हम इनिशियलाइज या डिक्लेयर कर रहे होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट समझा जाता है। और नेक्स्ट आपके पास है इंस्टेंस उसका, मतलब जो भी है जिसमें हमें सॉल्व करने में टाइम लग रहा है उसको क्या करते हैं, उसके साथ प्लस करते हैं। तो सिंपली अगर आप देखना चाहें इस फॉर्मूले को यहाँ पे देख लें कि हमारे पास टी और पी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यूज प्लस जो है जो भी हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में प्रोग्राम में जो इंस्टेंसेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, जैसे अकाउंट में रखना लाजमी है कि इनको चेक करना है वो, ठीक है। इसको दोबारा से यहाँ पे नीचे डिफाइन किया गया कि टीपी के मीनिंग क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम पी। टीपी बेसिकली रन टाइम या वेरिएबल पार्ट को शो कर रहा होता है कि जो है जो पार्ट वेरिएबल है या रन टाइम में हमारे पास चेंज होता है, उस चीज़ को क्या करता है, टाइम टी ऑफ पी शो कर रहा होता है। जो हमारे पास ये छोटा टी ऑफ पी ऊपर है, ये जो टी ऑफ पी है वो एक रन टाइम या वेरिएबल पार्ट को प्रोग्राम के शो कर रहा होता है। सी बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट टाइम या कंपाइल टाइम को शो कर रहा होता है। कंपाइल टाइम इज व्हेन द होल प्रोग्राम इज डिकोडेड और फिक्स्ड पार्ट। हमें पता है कि कंपाइल टाइम हमारे पास कब आता है, जब हमारे पूरा प्रोग्राम जो है, कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, ट्रांसलेट करता है ना, डिकोड करता है हमारे पूरे प्रोग्राम को। तो जहाँ जहाँ डिकोडेशन की बात आती है, डिकोड कर रहा होता है हमारे प्रोग्राम को हमारा कंपाइलर, तो वो हिस्सा हमेशा कांस्टेंट समझा जाता है। अगर इसके अलावा हमारा प्रोग्राम कोई वेरिएबल पार्ट है, जैसे कोई लूप चल रहा है, तो सिंपल एक कांस्टेंट और वेरिएबल पार्ट के मैं दो एग्जांपल यहाँ पे इस तरह दे सकती हूँ कि अगर मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रही हूँ तो वो मेरा सी है, कांस्टेंट टाइम है। और अगर मैं कहीं पे लूप रन कर रही हूँ तो वो मेरा रन टाइम है, क्योंकि वो मेरा वेरिएबल पार्ट है। अगर मैं 10 मरतबा लूप चलाऊंगी तो मुझे कम टाइम लगेगा, और अगर मैं 1 लाख मरतबा किसी लूप को चलाऊँ तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दिस मीन्स वो मेरा वेरिएबल पार्ट है। अगर मैं जो है अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल मतलब इंट के नाम से एज इज इक्वल्स टू 18, 18 में दूँ, मैं 19 दूँ, मैं 20 दूँ, मैं उस वेरिएबल के वैल्यू को जितना भी चेंज करूँ, लेकिन जब मेरा कंपाइलर से रन करेगा या रन टाइम में जब भी उसे देखा जाएगा तो उतना ही टाइम लेगा वो एक सिंगल वेरिएबल, ठीक है। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस प्रोग्राम का या इस पीस ऑफ कोड का जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मालूम करके दें, तो आप मुझे कैसे मालूम करके देंगे। जैसा मैंने अभी कहा
कि अगर मेरे पास एक कांस्टेंट हिस्सा आता है, मतलब ये कांस्टेंट है, एक ही मर्तबा देखा जाएगा, हर फंक्शन का ये वाला हिस्सा कांस्टेंट रहता है। अगर कोई ब्रैकेट है तो वो कांस्टेंट है, वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है या डिक्लेयर हो रहा है, वो पार्ट भी मेरे पास कांस्टेंट के तौर पर काम कर रहा होगा। लेकिन जहाँ पे लूप की बात आती है, मतलब जितना मेरा लूप चेंज होता जाएगा वो मेरा वेरिएबल पार्ट है। तो इसमें ये वाला जो कंप्लीट हिस्सा है जहाँ पे मेरा लूप चल रहा है वो मेरा वेरिएबल पार्ट है। मीन्स ये लाइन वेरिएबल है और ये मेरे पास वेरिएबल है, और ये मेरे पास अगेन कांस्टेंट लाइन में आता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ओके, हमने देखा कि फर्स्ट मेरे पास ये क्या है, मैंने कहा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमेशा शो करेंगे जीरो से, या कांस्टेंट समझ लें या आप समझ लें ये जो हिस्सा होता है किसी भी प्रोग्राम का, उसे हम कंसिडर ही नहीं कर रहे होते हैं जब हम फंक्शन बना रहे होते हैं। कि अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना हो तो फंक्शन का स्टार्ट है ये, हम इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ को हम शो करेंगे ज़ीरो से। मतलब वो टाइम ही नहीं लेगा हमारे प्रोग्राम को कंपाइल होने में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई भी पार्ट अदा नहीं कर रहा है। और ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसको भी हमने ज़ीरो अलॉट कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये टाइम लेगा, एक कांस्टेंट टाइम लेगा। अगर मैं यहाँ वैल्यू 0 रखूँ, 10 रखूँ, 20 रखूँ, 30 रखूँ, जितना भी रखूँ, लेकिन जब भी मेरा एक वेरिएबल पढ़ा जाएगा किसी कंपाइलर के ज़रिए, जब कोई भी कंपाइलर्स वैल्यू को पढ़ेगा तो वो उतना ही टाइम लेगा, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो, वो टाइम कांस्टेंट लेगा। तो कांस्टेंट के लिए पहले ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में कि 1 हम लिखते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, ये जो हमारा हिस्सा है फोर का लूप है, उसे आप ड्राई रन करें, इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा। और यहाँ मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है कि मैं आपको इसको ड्राई रन करके बताऊँ। आपको ड्राई रन का तरीका बहुत अच्छे से पता है, आपने जस्ट इसको ड्राई रन करके ये देखना है कि ये जो फोर का लूप है वो किस तरीके से चल रहा है और कितनी मर्तबा चलेगा। तो मेरे ड्राई रन करने के बाद अगर 1 से स्टार्ट है, n तक, लेस देन n तक है, तो मेरे हिसाब से n+1 तक चलेगा। और n+1 तक क्यों चलेगा, उसे n तक क्यों नहीं चलेगा, उसे n पे स्टॉप क्यों नहीं होना चाहिए, ये आपको पता है कि अक्सर जो भी लूप होता है हमारे पास वो एक्स्ट्रा टाइम कंडीशन को चेक करता है। तो ये जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज में कैलकुलेट कर रहे होंगे, उसमें हम यही देख रहे होंगे कि ये वाला हिस्सा कितनी मरतबा चल रहा होता है उसमें। सही है, ये एक मरतबा गलत भी चलता है हमें मालूम है, इसके बाद वो अंदर नहीं आता। इन जितना भी हम उसे एक लिमिटेशन देते हैं, लिमिटेशन से एक हिस्सा वो ज़्यादा चलता है, इसीलिए n+1। देन क्योंकि ये तो हिस्सा फॉल्स होने के बाद नहीं चलता, अगर ये n+1 होगा तो ऑटोमेटिकली वाला हिस्सा आपका क्या है, n। अगेन यहाँ पे ब्रैकेट है, उसके लिए हमने ज़ीरो शो कर दिया, और इसके अलावा अगेन ब्रैकेट है, इसको हमने ज़ीरो शो कर दिया, और ये रिटर्न s करेगा, एस करे, वी करे, मतलब कोई भी वैल्यू या वेरिएबल रिटर्न करेगा उसे इतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, और अगेन एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हमने ज़ीरो से शो किया हुआ है। सही, इसमें अगर हम कुछ लिखना चाहें तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखने का कुछ, ठीक है, नीचे जो है मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट किया है। सिर्फ कैलकुलेशन में क्या है, सारे जो कांस्टेंट हैं, जो भी वेरिएबल है, उनको हमें प्लस करना होता है। जो कॉम्प्लेक्सिटी का, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हमारे पास फार्मूला था TP इज इक्वल्स टू C प्लस TP इंस्टेंस। मतलब TP में इक्वल टू कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट चीज़ें, मतलब जो मैंने 1 1 दिए हैं उनको भी प्लस करो। जो वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल पार्ट मेरी लूप का 4 का लूप था, तो जितनी भी चीज़ें यहाँ मैंने उनको सबको क्या कर दिया है, यहाँ तक मैंने उनको प्लस कर दिया है। ठीक है, प्लस करने के बाद मैंने इक्वल करके उनका एक सम निकाला है, जिससे मेरे पास आएंगे, मेरे पास 2n है और 3 कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, तो 2 + n, दोनों में से, इसमें से जो भी मेरे पास हाईएस्ट होगा वही हम क्या कहेंगे कि मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम है। तो मैंने देखा 3 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो उसे हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। देन अगेन मीन्स जब हमारे पास पूरा TP कैलकुलेट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, उसमें जो आपके पास कांस्टेंट चीज़ें होती हैं उनको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और बाकी जो हमारे पास जो वेरिएबल पार्ट होता है उसे क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं एज अ TP या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पीस ऑफ कोड। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर मैं कांस्टेंट को इग्नोर करूंगी तो मेरे पास सिर्फ n बचेगा एज ए वेरिएबल, तो मैं क्या कहूँगी, बिग O ऑफ n जो है मेरे पास, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। थैंक यू, आई होप
आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे आगे बता दें ताकि हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? डोंट वरी। अल्लाह हाफ़िज़।